Hello children, good morning. Today I am going to teach you moral science subject, chapter number 5. So let's begin. Chapter number 5, Forgive and Forget. Forgive and forget. माफ कर दो और भूल जाओ. माफ कर दो और भूल जाओ. Anyone can commit a mistake. Some people are punished for their offense, and some people are so frightened of punishment that they do not do anything wrong. Anyone can commit a mistake. कोई भी गलती कर सकता है. Some people are punished for their offense. कुछ लोग को उनके अपराधों के लिए दंडित क्या करते हैं? अपराधों के लिए दंडित किया जाता है. And some people are so frightened to punishment that they do not do anything wrong. और कुछ लोग सजा से डरते हैं और कुछ लोग गलत नहीं करते. But there is something higher than punishment. It is forgiveness. Forgiveness is as pure and cool as water. It can put out the fire of mistake. But there is something higher than punishment. लेकिन सजा से बढ़कर कुछ है. It is forgiveness. वो है यह क्षमा है. जो सजा के बढ़कर भी कुछ है वो क्या है? Forgiveness यानी क्षमा है. Forgiveness is the pure and cool as water. क्षमा पानी के समान शुद्ध और शीतल है. It can put out the fire of the mistake. यह गलती की आग बुझा सकता है. यह गलती की आग बुझा सकता है. But there is something higher than punishment. It is forgiveness. लेकिन सजा से बढ़कर कुछ है. यह क्षमा है. Forgiveness is the pure is cool is water. पानी के समान शुद्ध शीतल है. It can put out the fire of the mistake. यह गलती की आग बुझा सकता है. What is forgiveness? क्वेश्चन मार्क दिया है. ये क्षमा क्या है? क्वेश्चन मार्क पूछा है. उसमें क्वेश्चन पूछा है क्षमा क्या है? It can be explained by a true story. Carlyle had written his story of French statecraft. It was ready to be printed. Just as Carlyle was about to give the manuscript to his printer, his friend requested that he might be allowed to read it. Carlyle handed the manuscript
to his friend कि what is forgiveness, क्षमा क्या है. It can be explained by a true story. उसे एक सच्ची कहानी से समस्या का हल आ सकता है. क्रेलायर had written a story of French statecraft. क्रेलायर ने फ्रेंच स्टेटक्राफ्ट का इतिहास लिखा था. क्रेलायर ने फ्रेंच स्टेटक्राफ्ट का इतिहास लिखा था. It was ready to be printed. कि यह छपाई के लिए तैयार था. His friend requested that he might be allowed to read it. कि वो प्रिंटर के लिए तैयार था, छपाई के लिए. कैसे ही कलाई प्रिंट के वो पांडुरंग रहने वाला था. उसके मित्र ने अनुरोध किया कि उसे पढ़ने की अनुमति दी जाए. Carlyle handed the manuscript to his friend. और कार्लाइल ने पांडुलिपि को अपने मित्र को सौंप दिया, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मेरे को उसको पढ़ने की अनुमति दी जाए. तो कार्लाइल ने क्या किया, उसके फ्रेंड को सौंप दिया. One day, the friend left the paper on the floor by mistake. His servant was cleaning the room when he saw the papers on the floor. He mistook them for waste paper and used the sheets to make a fire. इसमें आपको बताया है कि one day, एक दिन, the friend left the paper on the floor by, के दोस्त गलती से फर्श पर कागज छोड़ गया. His servant was cleaning the room. उसका नौकर कमरे की सफाई कर रहा था. When he saw the paper on the floor, जब उसने फर्श पर पड़े कागजों को देखा, he mistook them for waste paper and used a sheet to make a fire. तो उन्हें बेकार कागज समान समझ लिया. क्या किया उसने कि वो कागजों को उसने बेकार कागज समझ लिया और आग लगाने के लिए चादर के इस्तेमाल किया गया. कि आग लगाने के लिए चादरों का इस्तेमाल किया गया. Can you imagine how Lyell must have felt? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? His Pericles book had literally gone off in flames. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कार्लाइल को कैसा लगा होगा कि उनकी कीमती किताब सचमुच आग की लपेट में गिर गई थी. But he did not reproach either the friend or the servant. He forgave them. किंतु उसने न तो मित्र को निंदा की और न दास की, जो नौकर था उसकी.
उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। क्या किया? ही फॉरगिव देम। उन्होंने सर्वेंट जिसके दोस्त था उसको और जो सर्वेंट नौकर था वो दोनों को माफ कर दिया। क्या करता है? वो माफ कर देता है। कैन यू इमेजिन हाउ लायर्स मोस्ट हैव फेल्ट? कि कैसा लगा होगा जब उसकी बुक आग की लपेट में हो गई होगी। तभी पेरिकिस बुक कीमती किताब had literally gone up in flames। आग की लपेट में गिर गई थी। But he did not reproach either the friend or the servant। किंतु उसने न तो मित्र की निंदा की और न दास की। He forgave them। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। This is forgiveness you most learn for forgive। Everyone make mistake। Everyone must forgive। When your little brother tears up your book, you get angry, but only for a short while। Then you forgive him। This is forgiveness। यह क्षमा है। You must learn to forgive। आपको क्षमा करना सीखना चाहिए। Everyone makes mistake। गलतियां सभी को क्षमा करना। क्या है? गलतियां सभी को। Everyone must forgive। क्षमा करना सिखाना चाहिए। When you little brother, जब आपका छोटा भाई tears up your book, आपकी किताब फाड़ देता है। You get angry, तो आप गुस्सा आता है आपको। But only for a short while। लेकिन कुछ देर के लिए। Then you forgive him। तब तुम्हें उसे क्षमा कर दो। तब उसको क्या करना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए। कि आपका छोटा भाई जब आपकी किताब फाड़ देता है तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन कुछ देर के लिए तब तुम उसे क्षमा कर दो। बाद में उसको क्या करना है? क्षमा कर देना है। द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस मेक्स वन ए बेटर पर्सन। बोथ द forgiver and the forgiven। Forgiveness is the noblest virtue। The quality जो क्षमा का गुण व्यक्ति को क्षमा करने वाला और एक बेहतरीन व्यक्ति बनाता है। बेटर यानी बेहतरीन व्यक्ति बनाता है। बोथ द फॉरगिवर एंड द फॉरगिवन के बेहतर व्यक्ति बनाता है। क्षमा सबसे महान गुण है। क्षमा है वो सबसे महान गुण है। The quality for forgiveness make on the better person। क्षमा का गुण व्यक्ति को क्षमा करना और
क्षमा सबसे महान गुण है। व्यक्ति बनाता है और क्षमा है वो सबसे महान गुण है। बोथ द फॉरगिवर एंड द फॉरगिवन, हर कोई दोनों के बनाता है, जैसे क्षमा करने वाला और क्षमा करवाने वाला, क्षमा करने वाला और क्षमा करवाने वाला। यू हैव हेडेड ऑफ लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इवेंट यू क्वेश्चन मार्क दिया है। He started the power of forgiveness in an unforgettable way. The Chambal Valley in the Madhya Pradesh had always been infested with devotees. No matter how hard the police tried, they could not capture his devotees. JPSC was always called, then come up with the idea of appeal. He appealed to the devotees to come forward and lay down the arm. The reward, he said, would be pardon. Their crimes would be forgiven. They would not be punished. अभी इसमें बताया कि यू हैव हर्डेड ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इवेंट यू, आपने लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के बारे में सुना है। He illustrated by power of forgiveness in the unforgettable way. उन्होंने क्षमा की शक्तियों को अविस्मरणीय तरीके से दंडित किया है। The Chambal Valley in the Madhya Pradesh had always been infested with the devotees. मध्य प्रदेश के चंबल घाटी हमेशा से डेकोट से त्रस्त रही है। नो मास्टर हाउ हार्ड द पुलिस ट्राइड, पुलिस ने कितनी भी कोशिश की, द कुड नॉट ए कैप्चर द डिकोटीज, डिकोटो को पकड़ नहीं पाई। जेपी इज द वर्स्ट ऑलवेज कॉल्ड, जेपी जैसा कि उन्होंने देन कम अप विथ ए आइडिया, उन्हें के नहीं पाई जेपी की, उन्होंने हमेशा जेपी जैसा को उन्हें हमेशा बुलाया जाता था। ये अपील के विचार से साथ आए। He appealed to the devotees to come forward and lay down their arms. उन्होंने डकैतों से अपील की कि वे आगे आए, फॉरवर्ड आगे आए, एंड ले डाउन देयर आर्म्स, और अपनी बाहों को नीचे करे। The reward, he said, would be pardon. इनाम, उन्होंने कहा, क्षमा होगा। Their crimes would be forgiven. उन्हें अपराधों से माफ किया जाएगा। Why
वुड नॉट बी पनिशड, दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। ये पैराग्राफ में आपको दिया है कि अपने लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के बारे में सुना है, क्या आपने नहीं? क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या आपने नहीं सुना है? उन्होंने क्षमा की शक्ति को अविस्मरणीय तरीके से दंडित किया है। मध्य प्रदेश के चंबल घाटी हमेशा से डक्कों यानी डाकुओं से भरी होती है। ट्रस्ट रहिए, पुलिस ने कितनी भी कोशिश की डकैतों को पकड़ नहीं पाई थी। जेपी जैसा कि उन्हें हमेशा बुलाया जाता था। जेपी उसको क्या करते थे, वो हमेशा बुलाते थे, ऑलवेज बुलाते थे उसको। फिर अपील के विचार के साथ आए। उन्होंने डकैतों से अपील की कि वे आगे आए। उन्होंने डकैतों से अपील की कि वो आगे आए और अपनी बाहों को नीचे करे, डाउन देयर आर्म यानी नीचे करे। द रिवॉर्ड he said would be pardon। इनाम उन्होंने कहा क्षमा होगा। their crimes would be forgiven। उन्होंने क्या कहा था कि इनाम उसका क्षमा होगा। they would not be punished। उनको दंडित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं करना किया जाएगा कि दंडित किया नहीं जाएगा। अभी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। जयप्रकाश लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के बारे में कि उसने क्षमा की शक्ति को अविस्मरणीय तरीके से दंडित किया है। मध्य प्रदेश से चंबल घाटी हमेशा से डकैतों से त्रस्त रही है। पुलिस ने कितनी भी कोशिश की लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। जेपी जैसे कि उन्हें हमेशा बुलाया जाता था और उन्हें डकैतों से अपील की, आगे आए और अपनी बाहों को नीचे करे। और उसका इनाम है कि क्षमा, उसका इनाम उन्होंने कहा क्षमा होगा। उसका इनाम क्या होगा? क्षमा, उसको माफ किया जाएगा और उसको दंडित नहीं किया जाएगा। उसको यानी उसके अपराध के लिए उसको दंड नहीं मिलेगा, वो इसका इनाम है, वैसे उसने कहा है। अभी यहाँ तक हम स्टोरी कर रहे हैं, बाद में समझ गए? ओके।